question that is NEET 2016 के सारे questions है, must questions. Can you see that? The rate of first order reaction is 0.04 moles per liter per second at 10 seconds and 0.03 moles per liter per second at 20 seconds. Yes. After initiation of reaction, the half-life period of the reaction. The half-life हमें ढूंढना है. Very simple thing is that. बात समझना है. थोड़ा सा मैं पहले ड्रॉ करके समझाता हूँ. ये शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन है आपका at 0 सेकेंड. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. Now ये भाई 10 सेकेंड बीत गई. At 10 सेकेंड. Here, जो भी स्पीड है, the speed over there is rate, वो लोग बोल रहे हैं स्पीड 0.04 moles per liter per second, and this is a concentration of A at 10 second. फिर शुरुआत से ये 20 सेकेंड बीत गई. जो भी उसकी तभी स्पीड देखने मिली है at that time the speed is write with small handwriting. The rate equals to 0.03 moles per liter per second and this is the concentration of A at 20 seconds. थोड़ा डायग्राम दिमाग में बैठा आपको. ठीक है. अभी मैं इसको वन बाय वन अभी जस्ट इसके पहले के क्वेश्चन में हमने किया था रेट लॉ अप्लाई करके. Here we know that rate equals to K. First order is 1 like this. Rate है 0.04 moles per liter per second. This is K. This is concentration of A at 10 seconds. We don't know that. And similar is equation number 1. Let me write. Similarly, और एक उसने बोला है कि speed is 0.03 moles per liter per second K and this concentration of A at 20 seconds. So, just I am dividing 1 by 2 or 2 by 1, whatever you can do it. मैं इधर ही कर लेता हूँ ऐसे करके. This is equal to K निकल गया, unit निकल गया. This is basically we got. We don't know this value basically. A concentration of A at 10 seconds and concentration of A at 20 seconds we don't know. So at least हमें उसका ratio मिल जाएगा from this. 2 point आगे that is 4/3. ये हमारा special treatment हमें एक चीज मिल गई है. Now the important thing is this K 2.303 by T log to the base 10 initial concentration upon final concentration. ये एक फॉर्मूला सबको याद है, राइट? Now the important thing is here हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. this much. ये दोनों का रेशियो हमें पता है. तो अगर मैं here this A का concentration at 10 सेकेंड, A का concentration at 20 सेकेंड. Suppose I am writing here मतलब क्या मैं इसको इनिशियल बोल दूं थोड़ी देर के लिए और इसको फाइनल बोल दूं. ठीक है, बिकॉज आई हैव दिस रेशियो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस. नाउ ये इनिशियल और ये फाइनल और ये you know that this is 10 seconds, this is 20 seconds, so this gap is 10 seconds. So let me write this time equals to 10 seconds. This 2.303. I hope आपको दिमाग चला because here का K constant speed आपको पता चल जाएगा and you can come up with that 4/3. This is 0.23 into log of this ratio. We know that 4/3. ठीक है.
very simple, log of 4 minus log of 3. So here log of 4 is 0.6, log of 3 is 0.47. खाली फर्स्ट 5 log की तो वैल्यू याद है आपको. So this is 0.13 into 0.23. You multiply both of this and you can come up with the answer. This is your 23 into 30, around 300. So 2 के आगे point, 2 के आगे point. So basically total 4 के आगे point, like this. You can do it like this. And this is K मिल गया आपको. और आपको पता है एक बार K अगर मिल जाता है आपको तो हाफ लाइफ ढूंढना आपके इजीली बाहर का खेल है. That is 0.693 by K. And K is अभी मिला है 0.03. Now 2 point आगे तो it will be 69.3 by 3, which comes around 3 2s are 3 3s are, but approximately. So 23.1 के करीब here there is option. I forgot to write. So you have to select the option which is nearer to the 23.1 seconds. So हाफ लाइफ कैसे ढूंढना है दिमाग में आपके जरूर बैठा होगा. वेरी सिंपल. मैंने क्या किया, आई जस्ट डेपिक द डेटा को मैंने लिख दिया अच्छे से पहले. उससे मैं ये जस्ट इक्वेशन बना के आई कैन कम अप विथ दिस रेशियो एटलीस्ट. पर ये रेशियो मिल जाता है मुझे सिंपल दिस फॉर्मूला में. लेट्स स्टार्ट विद दिस इनिशियल. ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनिशियल ये फाइनल. इनिशियल फाइनल में रख दिया मैंने उसको, वो वैल्यू मेरे पास थी. ये करने के लिए कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड्स. तो वो टाइम का रेट कांस्टेंट मिल जाएगा आपको. रेट कांस्टेंट ही वैल्यू रहती है. कांस्टेंट वैल्यू मिल गई, देन हाफ लाइफ करना इट्स वेरी इजी फॉर अस, राइट. आई होप इतना दिमाग में बैठा आपके. सो सी द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives you 4Na2 plus O2. Initial concentration by N2O5 का 7.2 moles per liter दिया है, and after 20 minutes NO2 is this much. Then what will be the rate of decomposition of N2O5? Speed of N2O5 पूछा है. तो N2O5 की स्पीड के लिए एक बेसिक फॉर्मूला तो आपको एक तो पता ही है. That is the what should I write here? That is क्या the rate of decomposition of N2O5 will be small change in concentration of N2O5 upon change in time. भाई क्लियर कट समझ रहे हैं. 20 मिनट रिएक्शन चला है. आफ्टर 20 मिनट्स मतलब 20 मिनट तक तो चला होगा. चेंज ऑफ टाइम इज 20 मिनट. दैट्स द शॉक. हाउ मच N2O5 का चेंज इन concentration? So let me rewrite the reaction here. That is what 2N2O5 gives me the 4NO2 plus O2. ठीक है. Now can you see the coefficient here? सब कोएफिशिएंट का गेम है पूरा. ये आफ्टर 20 मिनट्स 2.4 मोल्स पर लीटर बना अगर, बराबर है ना. कैन यू सी डबल. तो यार कैन यू सी ये x अगर कर दूं मैं तो 2.4 into 2 divided by 4 करके you can come up with this x value is 1.2. ये 2.4 बना मतलब ये कितना कंज्यूम हुआ होगा, सिर्फ 1.2 कंज्यूम हुआ होगा. And how much you bought initially? So I can represent here. This is 7.2 initially, and only consume is 1.2. So how much remaining? 6. This is in 20 minutes. So 20 मिनट में सिर्फ 2.4 बना अगर, इसका मतलब कंज्यूम कितना हुआ होगा, 1.2 है, राइट. सो दिस 1.2 कम कर दिया तो भाई 6 बचा है. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 6, you know this is minus आगे. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 6 माइनस दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 7.2. सो इस माइनस 1.2 माइनस आगे उसको प्लस कर देगा. सो इट्स वेरी सिंपल. 1.2 by 20. 2 को 20 को ऐसे लिख रहा हूं मैं ताकि फटाक से I can write this and I can come up with your answer, right? Divide by 10 करेंगे तो you can come up with the. So simple यार. देखिए ना 2.4 बना तो जस्ट आधा है ना,
आधा ही कंज्यूम हुआ होगा एंड यू बॉट 7.2 इनिशियली, कंज्यूम इज 1.2, सो लेफ्ट इज 6. सो सिंपल. क्लियर है? नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन A produces B, half life period is half life दिया है आपको is 15. एक रिएक्शन का half life दिया है 50 minutes. Now, if a reactant concentration is half, reactant का concentration आधा कर दिया, then half life period is half life भी कम हो गया 25 minutes. मतलब concentration कम करने पे half life भी कम हो जाता है. और पहचानने बोले then to find the order of the reaction. तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला वो 3 था ना, याद करो सर. आपने अभी सिखाया था बोला सेशन में, द फॉर जीरो ऑर्डर द हाफ लाइफ इज व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2k. फॉर सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी हैव रिमेंबर्ड दैट हाफ लाइफ अभी भी रियल्स किया था सर आपने 0.693 by k. एंड फॉर रेस्ट ऑल ऑर्डर एक साथ मैंने करके दिया था, दैट इज k इंटू हाफ लाइफ इक्वल्स टू k अपॉन बिग देना ना आगे 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 2 raised to n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन raised to n माइनस 1, वेर n इज द ऑर्डर. ये रेस्ट ऑल के लिए है, रेस्ट ऑल ऑर्डर के लिए, हेंस हियर यू कांट पुट 1 फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन, मतलब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. So 2 puts कर सकते हो. सेकेंड ऑर्डर के लिए you put 2 here 2. तो this is ठीक है, ये this all are constant. This is initial concentration and half life. So can I see that here half life is directly proportional to the initial concentration. Half life is independent of initial concentration, and here half life is inversely proportional to the initial concentration. इसका मतलब सर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, हाफ लाइफ बढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, हाफ लाइफ भी कम हुआ. सर कुछ भी करो ना, कॉन्सेंट्रेशन हाफ लाइफ चेंज नहीं होगा कभी भी. सिमिलरली हियर व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ कम हो जाएगा, उल्टा चल रहा है इधर. तो मैं क्वेश्चन में बोला है भाई हाफ लाइफ कम हो गया जब भी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गया, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हेंस हियर ओनली वी गेट डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑलवेज. Hence let me write here zero order. So I hope इतना फॉर्मूला दिमाग में अगर बिठाया होगा तो ये इसको इजी लगा होगा, राइट? इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, प्लीज इसको बिठा दो, फिर दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे. कम ऑन, चक दे फटे, नोट डाउन करो प्रॉपर्ली. यस. सिक्स सेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. आई होप आगे के सब देख लिए आपने. प्लीज सी, डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस विल बी डेफिनेटली बूस्ट अप इन 100%. ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करके आएंगे आप. सी नेक्स्ट सारे एम्स 2015 के और क्वेश्चंस लिए मैंने. सी वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इन द फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन एज रेट कांस्टेंट दिया है इस तरह से बड़ा सा, बड़ा देख के डर जाते सब लोग, बट ये टेंशन की बात नहीं है. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज दिस मच. ठीक है, सो हाफ लाइफ दिया है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दिमाग फटाक से चलना ही चाहिए. सर लेट्स इफ फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज दिस मच, मतलब टाइम दिया आपको. So 0.693 upon 6.93 to 10 raised to minus 3 minute. भी आपको समझ रहा है? ये पॉइंट को एक ही आगे लेना है तो 10 raised to minus 1 आएगा. 6.93 into 10 raised to minus 1 upon 6.93 into 10 raised to minus 3. ये कैंसिल, -3 ऊपर आएगा, +3 -1 विल बी +2, इट इज 10 raised to 2 पर मिनट. के मिल गया हमें. अभी आप पढ़ सकते हो
ये टेम्परेचर तुमने बोला ना, यू वांट टू फाइंड आउट द टेम्परेचर, तो पुट द के ना, के रख देंगे टेम्परेचर मिल जाएगा ना यार, बरोबर कि नहीं? सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, रख के करके देता हूँ, बट डोंट वरी। फॉर एक्सेसर लॉग ऑफ के दैट इज 10 raised to 2 14 minus 1.2 into 10 raised to 4 upon t. So basically 10 raised to 2, log of 10 raised to 2 is 2. 14, so 1.2 into 10 raised to 4 by t. इधर आ गया प्लस, इधर आ गया माइनस, so it's a 12. 1.2 into 10 raised to 4 by t. एंड टी निकालने के लिए जस्ट 12 को अपॉन में लिख इधर कैन राइट 12 into 10 raised to 3 विल बिकॉज क्यों 12 काट होने वाला है ना टेम्परेचर, सो हेंस टेम्परेचर इक्वल्स टू 1000 केल्विन। यस इज दैट, सो इजी था कि नहीं? खाली इधर के नहीं था, बस टेम्परेचर ढूंढने के लिए के लिए हाफ लाइफ दे दिया है ना, तो वो तो मैंने बोला है आपको, वो 6 फॉर्मूला दिया है आगे के सेशन में, वो याद होने के बाद सब अपने गेम में पूरा यू कैन इजीली डू इट। द नेक्स्ट वन, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ अ कैटालिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज? एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप इतना सबको दिमाग में होगा। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, दिस गैप हम लोग ने आगे के सेशन में भी किया है, दिस कॉल्ड एज चेंज ऑफ एंथैल्पी। दिस इज रिएक्टेंट पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन ग्राफ याद आ रहा है, और ये ऐसे आ रहा था, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज ऑलवेज, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी तो कांस्टेंट है ना भाई, तो चेंज ऑफ एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज ऑफ एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, दिस वोंट ऑल्टर। उसकी एनर्जी फिक्स है, एनर्जी वोंट ऑल्टर। बेसिकली इतना दिमाग चलना चाहिए आपको कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के अंदर ये रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी फिक्स है। कैटालिस्ट डालने के बाद इट अप्रोच द वेरी शॉर्ट पाथ एंड वी से दैट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, एक्स्ट्रा एनर्जी जो लग रही थी वो एकदम कम लग रही है। आराम से देखो, अभी मुझे बोला कि आपके पास 50 किलो जूल एनर्जी होनी चाहिए तो ही आप ये काम कर पाओगे, मेरे पास इतनी सारी एनर्जी नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मेरे को बोला कि अरे यार 5 किलो जूल भी एनर्जी है तो भी आप कर पाओगे, तो 110% आई विल एबल टू डू दैट वर्क, राइट? तो मेरा टेंशन ही कम हो गया, आराम से मेरे सारे रिएक्टेंट इतनी सी एनर्जी लेके फटाक से एक्स्ट्रा गैदर करके फटाक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फास्ट हो गया प्रोडक्ट्स में कन्वर्शन होने का स्पीड। तो कैटालिस्ट बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है ना। एंट्रोपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑलवेज हियर आल्सो एंट्रोपी आल्सो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एवरीथिंग सब फिक्स है ना, तो एंट्रोपी इज आल्सो गोइंग टू बी फिक्स। तो हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स में बात किया है अपने एंट्रोपी, स्पीशीज, एवरी स्पीशीज जो चेंज होने वाली है वही चेंज हो रही है ना, राइट? जो चेंज होने वाली है वही चेंज हो रही है, तो हेंस एंट्रोपी चेंज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट इन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैटालिस्ट ने क्या चेंज किया? दैट्स ओनली एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? ग्रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, the decomposition of phosphine on tungsten at a low pressure is a first order reaction. It is because the rate is the options independent of the surface coverage and आप पहले बात समझिए। The decomposition of phosphine मतलब चलो एक डिब्बा ले लिया, ये सब phosphine गैस है, phosphine ऑन टंगस्टन, तो ये टंगस्टन ले लिया आपका, टंगस्टन W, लो प्रेशर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज बिकॉज द Q, तो आप मेरे को बताओ ये टंगस्टन कैटालिस्ट क्या करेगा? फॉस्फाइन को पकड़ेगा अपने ऊपर,
फिर फॉस्फाइन को अपने जोर से अपने बलबूते पे इसको फॉस्फाइन को तोड़ेगा, डिकम्पोजिशन फॉस्फाइन का। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन बैलेंस दैट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इधर सरफेस एरिया टंगस्टन का फिक्स है भाई। काम करने का मेथड ये हम लोग ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, इन हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट का वर्क स्टाइल है ये। तो भाई जितना सरफेस है इधर मैं 500 मॉलिक्यूल भी लेके आऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये अपने फिक्स एरिया के हिसाब से फिक्स लोग को मॉलिक्यूल को ही पकड़ के तोड़ता है बेसिकली ये। तो कैन आई से दैट हियर द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। ये सरफेस कवरेज है उस पे स्पीड डिपेंड कर रही है, सरफेस पे कितना वो अटैच कर रहा है। 50 मॉलिक्यूल अटैच किया, एट टाइम 50 की डिकम्पोजिशन होती जाएगी। सरफेस कवरेज पे सिर्फ 30 का कवर किया तो 30 मॉलिक्यूल से टूटेंगे ऐसे, बराबर कि नहीं? तो बाकी ऑप्शन पढ़ लो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस। अरे भाई सरफेस पे जितना चिपकाएगा उतना ही वो डिकम्पोजिशन के लिए जाएगा ना। दूसरा बोला रेट इज डिकम्पोजिशन इज वेरी लो। अरे भाई उसका सरफेस ज्यादा है, उसकी एनर्जी ज्यादा है तो फटाफट कर सकता है वो, तो लो क्यों? रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस करे क्यों? लेकिन राइट, जितना चिपका उतना टूटने के लिए गया, बरोबर है। सो सिंपल इज दैट। तो हेंस लेट मी स्टिक विद दिस ऑप्शन, दैट इज योर थर्ड। सो आई होप काफी इजी पूछ रहे नहीं, 2016 में भी इतना नहीं है उसमें दम, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिमाग में सब देख के गए बरोबर, आराम से हम लिख के आ सकते हैं प्रॉपरली सब। अब इतना दिमाग चल रहा है आपका, राइट?